अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, हुकूमत की जानिब से नित नए तरीके अपनाए गए और कानून पर अमल दरामद करवाने की पूरी कोशिश की गई और आवाम को किसी न किसी तरह से कानून की छतरी के नीचे लाने की पूरी कोशिश की गई और आवाम को बताया ये गया कि आपको चालान होगा, आपको जुर्माने होंगे और किसी भी सूरत में आपने कानून के ऊपर अमल दरामद करना है। लेकिन जिनकी जानिब से अमल दरामद करवाने की कोशिश की गई उनके हालात आपको सबसे पहले दिखाते हैं। ये है सुथरा पंजाब का रिक्शा है लेकिन नंबर प्लेट मौजूद नहीं है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक रिक्शे की नहीं है, ये कहानी तकरीबन 90% उन तमाम गाड़ियों की है जो कि सुथरा पंजाब में इस्तेमाल हो रही हैं। आप कहीं पर भी मूव करेंगे, आप रोड पर होते हैं तो आप देखेंगे कि जो सुथरा पंजाब के लिए जो गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं उनके ऊपर नंबर प्लेट है ही नहीं। जब आप अपने इदारों के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकते वो कानून, तो आम आवाम पर वो कानून किस तरह से लागू होगा। सुथरा पंजाब के हालात देख लिए। बाकी अगर हम दूसरे रिक्शों के देखें, नंबर प्लेट मौजूद ही नहीं है। ये हालात हैं हमारे सरकारी इदारों के और जिन्होंने अमल दरामद करवाना है उन लोगों के। बाकी बहरहाल रिक्शों पर बड़ी बात चली कि रिक्शों को किसी तरह से पाबंदी लगाई जाए, रिक्शों को बैन किया जाए, ये वाली बात भी बहुत चली। मेरे साथ यहाँ पर रिक्शे वाले मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। अभी 1 जनवरी तक हुकूमत ने कहा था कि 5 बड़े रोड जो हैं उसके ऊपर रिक्शों की पाबंदी होगी, तो वहाँ पर तो अब आप नहीं जा सकते हैं। और गरीब आदमी की करेगा, साथ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी खत्म हो गई है। नहीं गरीब आदमी की करनगे, इन्हें लोगों ने रोजगार बने हुए, गरीब आदमी की करनगे मैंने दसो ना। किराए तो जिन्होंने मकान है, जिन्होंने निक्के 4-5 बच्चे है, की करनगे मैंने दसो ना, किधर जाएंगे? ਜਾਂ तो उन्होंने कोई चीज़ दिती जाए तो ले लें। ਅਸੀਂ रक्षा आप खत्म करना चाहांगे। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਤਮ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਗਰ ਰਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਇਹ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝਾੜੂ ਮਰਵਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਣ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਇੰਨੇ ਆਦਮੀ ਲੋਕ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਰੋਜ਼ਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਕਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਬਾਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਜੋ ਬੱਸ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬੱਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਰਸਤਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਿੰਚੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਿੰਚੀ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਾ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣ। ਰਕਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ? ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਣਾ? ਇਹਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ? ਇਹ ਟਾਈਮ ਇਹ 90,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। 90,000 ਰੁਪਏ ਦਾ? ਤੇ ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਲੈਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਨਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 90,000 ਰੁਪਈਆ, ਘਰ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਚਲਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਰਲਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਭੁੱਖੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗੱਡੀਆਂ। ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 12,000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 4 ਬੱਚੇ ਆ, 3 ਬੇਟੀਆਂ 1 ਬੇਟਾ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਖਰਚੇ ਦਾ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੀ ਖਲੋਤਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਇਹ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਹਫਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ 2,000 ਰੁਪਏ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾ, ਮੈਂ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਬਣਵਾ, ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰ। ਫੇਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਨ? ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਰਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਲਾਉ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਲਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਚਲਾਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਆਖਰੀ ਚਲਾਨ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 2000, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਉਸ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਚਲਾਨ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ट्रैफिक वाले लहदा करते हैं। दसो किधर जाए बंदा? यकीनन मुश्किलात तो चिंची रिक्शे वालों या फिर जो भी रिक्शे वाले हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा है। जो लोडर रिक्शे वाले हैं वो भी इसके ऊपर शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि हमारी भी यही प्रॉब्लम्स हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, आप रिक्शा चलाते हैं? नहीं सर, रक्षा नहीं। आप क्या काम करते हैं? मैं अब मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ। मेहनत मजदूरी करते हैं, तो आपको क्या लगता है रिक्शे वाला काम ज़्यादा बेहतर है कि मेहनत मजदूरी ज़्यादा बेहतर है? दोनों काम ठीक है। दोनों रिक्शे काम वाला काम ठीक है। रिक्शे वाला बेहतर है, लेकिन रिक्शे वाले कहते हैं
क्या हमारे लिए तो रोजाना की मजदूरी निकालना मुश्किल हुई है। वो तो है लेकिन चलान बहुत ज्यादा हो रहे हैं ना। चालान बहुत होने चाहिए। खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। चलान तो बहुत हो रहे हैं। हो रहे ने। हाँ जी चलान हो रहे हैं। 2000 रिक्शा चलाते हाँ जी 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ 2000 ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਨਾਲ ਹੀ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਜੀ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨਿਆਜ਼ਬਿਲ ਚੱਲਨੇ ਆ 1200 1300 1400 ਇਸ ਤੋਂ 2000 ਦਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾਨ ਹੋਏ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਗਈ। ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਬਾਹਰ ਮਿਹਨਤ ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਮਿਹਨਤ ਚੜ੍ਹ ਦੇਣ। ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਟੁੱਟੇ ਰੋਡ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਐਕਸੀਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਡੀਸੀਓ 2000 ਦਾ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੱਢਣਾ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਰਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੋਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਰੀ ਚਲਾਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਆਖਰੀ 8-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਕਰ ਅਗਰ ਦੇਣਾ ਰਕਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਕਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋੜ ਗੇਟੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮੋੜ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜ ਲੈਣਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਚਲੋ ਮੋੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੱਭੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ? ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ 5-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੋੜ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਇਹ ਵੇ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਿਆ? ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਣਾ ਟਰਾਈ ਤੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 6 ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ? ਲਰਨਿੰਗ ਬਣਿਆ ਜੀ ਲਰਨਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ? ਲਰਨਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਲਰਨਰ ਬਣਿਆ? ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਲਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਹੋਣਾ। ਚਲਾਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਜਾਂਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਰੋਡ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮਾਰੇ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੀ? ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁਣ ਬਣਵਾਇਆ? ਜੀ ਹੁਣ ਬਣਵਾਇਆ। ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਰੱਖਿਓ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਈ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਰਕਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ ਬਾਡੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਕੰਮ ਛੱਡਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਮ? ਕਈਆਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋਣੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ ਹਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰ ਛੱਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਆਏ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੜਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹਰਾਲ ਅਗਰ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਨਇਆ ਰਕਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 2-2.5 ਲੱਖ ਉਹਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕੀ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ 800 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ 2100 ਦਾ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏ 2200 ਦਾ ਜਾਂ 2000 ਦਾ ਤੇ 800 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ 500 ਦਾ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾੜਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਬਚਣਾ? ਚਲਾਨ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਸੀ ਯਕਦਮ 2000 ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ 1800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ। ਕਿਆ 1800 ਸਾਡਾ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਹੋ ਜਾਏ? 20 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੁਲਸ਼ਨ ਟਾਊਨ ਤੇ ਅਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਸਟਾਪ ਟੂ ਸਟਾਪ 20 ਰੁਪਏ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡਾ 40 ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ 2000 ਚਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ 20 ਰੁਪਏ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਲਾਨ 2000 ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਘਟਾਏ ਵੀ ਨੇ ਕਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤੇ ਹੋਏ? ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਪੈਟਰੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨੀਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਦੇ। ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ 10 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ 1 ਲੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਤੇ 6 ਸਵਾਰੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਰਾਇਆ ਘਟਾਈਏ? 1 ਰੁਪਿਆ ਘਟਾ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੈਸੇ ਰਕਸ਼ੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ? ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 5-6 ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੋਹਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁਣ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੀ side ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸੀ? ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਿਹਤਰ ਉਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1500 1800 ਰੁਪਏ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡਿਸਕ ਖਰਾਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਸ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਅਗਲੇ ਪਲਾਨ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਡਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ
ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਮੋਹਰਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਹੀ ਦੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾਏ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਦੱਸ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪਿਓ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਬੀਵੀ ਪਹਿਲੇ। ਸਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਾਤ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ, ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਸਊਦੀ 5.5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੂੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਝੁੱਗੀ ਜੀ ਪਿਆ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਮਰਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਦਰਸੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਬੋਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡਾ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮੋਹਰਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਡਿਸਕ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਹੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ? ਵਜ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਝੁਕਣਾ ਨੀਚੇ ਝੁਕਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਹੈ, 5 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। बिल्कुल सारे लोगों के मिसाइल ने अल्लाह ताड़े वास्ते आसानी करे। जब ये सारा कुछ इलेक्ट्रिक रिक्शों पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर भी काफ़ी लोगों का रिस्क चलेगा, लेकिन नए लोगों का जो है वो रिस्क इसके साथ जुड़ेगा। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। एक जानिब तो हमें नज़र आता है कि अगर चिंची रिक्शे बंद होते हैं तो बहुत से लोगों का रोज़गार ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दूसरी जानिब जो चालान की बड़ी वजह है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर अगर मेरा कैमरा पैन करे तो ट्रैफिक कितनी ज़्यादा रुकी हुई है, लेकिन तमाम ट्रैफिक रुकने के पीछे क्या है, ये सारे के सारे चिंची रिक्शे हैं। ये चिंची रिक्शे रोड के दरमियान में लगा कर खड़े हो जाते हैं, और फिर उसके बाद सारा का सारा बाद में इल्ज़ाम किस पे आता है? ट्रैफिक वार्डन्स पे आता है, ट्रैफिक पुलिस पे आता है। सिटी ट्रैफिक पुलिस के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हुए नज़र आते हैं इस तरह से। अब ये मेरे राइट साइड पे पैन करे, रिक्शा दरमियान के अंदर रुका हुआ है। अब बिल्कुल लेफ्ट साइड पे सारे के सारे रिक्शे दरमियान में ही मौजूद हैं। ये एक भाई आ रहे हैं, इनसे पहले बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्लाह का करो। भाई एक चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो ये है कि जो चिंची रिक्शे हैं वो सारे के सारे ट्रैफिक रुकी हुई है ना, जी जी। तो चिंची रिक्शे दरमियान में आके क्यों रोक लेते हैं? वो उनसे पूछे, वो क्यों रोक ले, साइड में बहुत भी से लोग रोक लेते हैं। जी जी। आप भी ऐसे सेंटर में आ रहे थे, बहुत से ऐसे, गलत बात नहीं है वैसे ये। जी गलत बात है, वो जो चालान होते हैं इसी वजह से होते हैं, किसी और वजह से होते हैं? इसी वजह से ही होते हैं, इसी वजह से होते हैं, गलत करते हैं चिंकी रिक्शे गलत वाले। करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब आप सेंटर में खड़े हैं, मुझे आपको ज़्यादातर रोकना भी नहीं चाहिए, आप बड़ी यही तो मेहरबानी बात आप है। जरा जाएं। बस यही वाली बात है कि अगर इस तरह से चिंची रिक्शे वाले भी ख्याल करेंगे, अगर ये ख्याल नहीं करेंगे तो इस तरह से इनके ऊपर भी चालान होंगे। अब ये इस हद तक पीछे लाइन लगी हुई है और सारी की सारी लाइन चिंची रिक्शे वाले। अब ये देखें कैसे मूव कर रहे हैं, वन वे आ गए हैं। वन वे भी यहाँ पर इसी तरह से चलते रहते हैं, और जब ये इनके ऊपर चालान होते हैं तो फिर ये लोग रोते हैं। खैर, ये सामने काफ़ी चिंची रिक्शे वाले हैं, देख के इधर उधर मूव कर जाते हैं। अब इनसे बात करते हैं। कहाँ पर है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान सुना है आपके ऊपर बड़े चालान होते हैं? ये तो फिर झूठ वाली बात है, मेरे एक भी चलान नहीं एक भी हुआ। चलान नहीं हुआ? एक चलान नहीं हुआ यार। कितने साल हो गए आपको चलाते हुए? मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गए रक्षा 1.5 साल में एक चालान नहीं? एक चलान भी नहीं हुआ। सिफारिश होगी, कोई बड़ी फ़ोन करवा देते होंगे? नहीं, रोंग खड़े होगे तो चलान होगा ना भैयान। कौन सा रिक्शा है आपका? ये सामने खड़ा हुआ है ये वाला रिक्शा है जी। तो आप सही खड़े हैं? जी बिल्कुल सही करे। ये उन्होंने लाइन दी हुई है, ठीक है। ये एक रक्षा इधर खड़ा हो सकता है, अगर ये गलत रोंग खड़े हैं? खड़ा हुआ है ये भी रॉन्ग खड़े हैं? जी, ये वो सारे भी के रोंग, wrong सारे खड़े हैं? रोंग खड़े हुए हैं मेरे यहाँ। तो जब इनको चालान होते हैं जाहिर बात चलान तो होना, जब रोंग खड़े होंगे तो चलान तो होगा ना मेरे तो यहाँ। फिर वो कहते हैं जी भाई हमें चालान कर रहे हैं, आप लोग गलत कर रहे हैं। ये तो उनकी गलती है ना, गलती की वजह से चलान होता है मेरे यहाँ। अगर गलती ना हो, यह मैं खड़ा हूँ ना, चलान नहीं होगा यहाँ पे। सारी रात खड़ा रहा हूँ, सारा दिन खड़ा रहा हूँ। आपको चालान नहीं होगा? ये तो कह रहे हैं 2-2 हज़ार के चालान मॉडर्न आते हैं, 2 हज़ार के चालान कर जाते हैं। ये देखिए अब रश लगा हुआ है, प्रॉब्लम होती है ना ट्रैफिक। हाँ वो भी इसकी वजह से है, ये रक्षे की वजह से, चिंची रिक्शे की वजह से। चिंग रक्षे की वजह से। चलो मैं थोड़ा सा मूव करके दिखाता हूँ। ये बिल्कुल मेरे पीछे आप देखें ट्रैफिक सारी रुकी हुई है, लेकिन किसकी वजह से है?
वो सारे के सारे चिंची रिक्शे यहाँ पर मौजूद हैं। चिंची रिक्शे सारी की सारी ट्रैफिक ब्लॉक करके खड़े हैं और इसके बाद अब ये देखें ट्रैफिक वार्डन यहाँ पर आ रहे हैं, उनको देख के थोड़ा थोड़ा आगे मूव कर रहे हैं। यहाँ पर इतना रश मौजूद है, वो देखिए ट्रैफिक वार्डन बिल्कुल मेरे बैक साइड पर जा रहे हैं और उनको वो देखें वन वे आ रही हैं। ट्रैफिक वार्डन वहाँ पर मौजूद है लेकिन उनके सामने भी वन वे आ रहे हैं। कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। ये जरा भाई इनसे बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? ये ठीक ठाक। अच्छा भाई इस तरफ आ जाता हूँ। यार ये आपको नहीं लगता रिक्शे बहुत दरमियान में लगे होते हैं? हाँ जी, बहुत दरमियान में लगे हैं, बहुत आपको गलत लगे हुए ना? हाँ जी, तो चालान सही होते हैं फिर? हाँ जी होते हैं, सही होते हैं, हाँ होने जी, चाहिए। हाँ जी। अभी मेरा 1500 का चालान हुआ सर। किस वजह से? वो उन्होंने उधर मैं रिक्शा खड़ा किया, उन्होंने कहा इधर खड़ा क्यों किया है? तो गलत नहीं खड़ा किया हुआ था? हाँ जी, खड़ा गलत किया। होना चाहिए था हाँ चालान? जी, हाँ जी होना चाहिए। एक्सेप्ट करते हैं, अब हाँ सही जी, चालान हुआ। हाँ जी। तो आप तो पूरे दिन में कितने पैसे कमाएंगे? 1500 कमाया, 1500 चला गया। 1500 कमाया, सारे चला गया? हाँ जी, सारा चला गया। बिल्कुल, ये तो फिर अच्छी बात है, हाँ आपने जी। एक्सेप्ट किया, आपकी हाँ जी, गलती थी। हाँ जी, मेरे- चलें जी, सारा कुछ हम सिटी ट्रैफिक पुलिस के ऊपर नहीं डाल सकते हैं, लोगों की अपनी गलती भी होती है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप, ठीक है? अच्छा भाईजान मैंने देखा कितनी ट्रैफिक यहाँ पर जैम है। हाँ जी। लेकिन ट्रैफिक जैम करने के अंदर सबसे बड़ा किरदार चिंची रिक्शों का, बिल्कुल सेंटर में खड़े हो जाते हैं लगा के। ये दासा जो पिंडो सामा से लोग आए हैं ना, ये इनको कोई शौर नहीं इतना कि गांव से आए हैं सारे गाँव लोग? से आए हैं जी। खास करके ये लाहौर के नाले मरियम नवाज जो है ये रक्शे वगैरह बंद कर रही है, तो काफ़ी ये बहुत नहीं देखे बड़ा- चालान किस वजह से हो रहे हैं? चालान इसी वजह से हो रहे हैं कि सेंटर में लगा लेते हैं। हाँ जी, ये गलत तो बात आगे से गलती भी दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। नहीं, ये गलत बात। गलत बात है। चालान सही होते हैं, गलत होते हैं? चलान पहले तो 200 का करते थे, अब 2000। वैसे सेंटर में खड़े होते हैं, इस वजह से चालान होता है। नहीं नहीं, वो तो अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए करते हैं। जो कौन अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए? सार्जेंट अपनी दिहाड़ी लगाते हैं। पहले चलान होता था कि गवर्नमेंट के में खाते में जाता था, अब वो कह रहे हैं इस नंबर पर 2000 का मैसेज कर दो, 3000 का कर दो। अभी तो ये जो हुकूमत है ये वाम को लूट रही है। देखिए, ऐसे नहीं होना मैं चाहिए। आपको वो बात कर रहा हूँ कि सारे लोग हम यकीनन हम ख्याल करते हैं कि गरीब आवाम है, गरीब आवाम का ख्याल करना हाँ चाहिए, जी। लेकिन गरीब आवाम भी तो ख्याल करे। बाकी जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल सेंटर में देखे रिक्शे कहाँ पर लगे हुए हैं, सही लगे हुए हैं वो नहीं, रिक्शे, ये गलत लगे हुए हैं ना? ये गलत बात है। ठीक, अब इस तरह से होगा तो यकीनन चालान तो बनते हैं हाँ फिर। जी, सही बात है। चलें, बाकी बहरहाल ये भी एक पहलू था कि बिल्कुल सेंटर में आके खड़े हो जाते हैं और इन तमाम लोगों को फिर चालान होते हैं। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। चिंची रिक्शों से मुतालिक बात कर रहे थे कि इनको चालान क्यों हो रहे हैं, असल वजह जानने की कोशिश कर रहे थे। भाई मौजूद है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। भाईजान कैसे हैं आप, ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। भाईजान ये देखिए वैसे ट्रैफिक और ये देखिए वन में अभी भी रिक्शे वाले आ रहे हैं। यार ये जो वन वे की प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। सो ये देखिए, move दुनिया कर में रहे ये हैं। वन वे का कुछ नहीं कंसेप्ट पता, ही नहीं है हमारे इनके लिए यहाँ। नॉर्मल है, ये देखे ना। वन वे वहाँ मीन्स से- लोगों को एजुकेशन ही नहीं है ड्राइविंग की। पूरी दुनिया में एजुकेशन दी जाती है ड्राइविंग के लिए, पूरी क्लासेस ली जाती हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम ही नहीं है। और स्पेशली ये चिंची वाले जो है ना, हम ये तो तमाम हमारी चीजें कब तक हुकूमत पर डालते रहेंगे? हम हुकूमत क्यों को नहीं? इस साइड पे आना चाहिए। लोगों को थोड़ा बाकी चीजों में सारा कुछ हो रहा है। हुकूमत जब खुद आती है, हुकूमत इनको चालान करने पे आती है। एजुकेट करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मोहल्ले लेवल पे, सारे मीन्स हम मानते हैं भाई ऐसा जरूर होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन ये चिंची ये वाले क्यों जो नहीं है, है? ये देखिए, चिंची वन- वालों ने हमारी सिटी की सारी खूबसूरती बर्बाद करके रख दी है। जितना बड़ा चाहल है वो चिंची पे बैठा हुआ है, ठीक है। चिंची पे कोई किसी को चले नहीं, हम इन ड्राइविंग चीजों का एहतराम करते हैं कि सिटी हर में- शख्स की अपनी। सिटी में मैक्सिमम जो एक्सीडेंट है वो चिंची की वजह से है। तो लिहाजा इन चिंची वालों को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। इनमें थोड़ा इनको एजुकेट करें या जैसे कैसे करके, या इनको कोई अल्टीमेट दें, इनको कुछ भाई और ये भाई लोकल लेके आए। चिंची चलाते हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान भाई भी मौजूद है, मैं खुद देख रहा हूँ कि इतनी ट्रैफिक फंसी हुई है, लेकिन चिंची वाले दरमियान में आके अपना रिक्शा लगा रहे हैं, वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। भाईजान चैंची वाले ਦਾ ਇੰਜ ਰੂਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। जो मर्जी कर लो। ਲੰਗੜੇ ਲੂਲੇ ਨੂੰ ਚੈਂਚੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੈਂਚੀ ਵਾਲਾ।
ਠੀਕ ਹੈ 2000 ਐਵੇਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸਰ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਸਾਰੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ ਨਾ ਵਨ ਵੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 'ਚ ਪੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰਜੈਂਟ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਗਲਤ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਸਹੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਵਨ ਵੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਸਹੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਖਲੋਈ ਤੇ ਸਹੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਰੋਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ center 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣਾ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣਾ 3000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ ਯਾਰ ਫਿਰ 3000 ਦਾ ਫਿਰ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਹੈ ਇੱਥੇ 5000 ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਣਾ ਭਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਡ 'ਚ ਕਿਉਂ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਉਹ ਭਾਣ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਹੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਰ ਰੋਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਵਾ ਰੋਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਚੱਡਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਪੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਵਨ ਵੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਨ ਭਾਣ ਵੇ ਆ ਰਹੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ- ਆ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਮਾਨ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਐਵੇਂ ਵਨ ਵੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋ भाईजान ऐसे ही है यार बिल्कुल ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये चिंगसी वाले इस सिटी की बर्बादी है, तो इन पे थोड़ा इनको देखना चाहिए। मैंने पहले अर्ज किया ना आपको, जितना स्टूपिड जो भी स्टूपिड बंदा है ना वो चिंगसी पे बैठा हुआ है। हम चले इन चीज़ ठीक का है? ख्याल करते ट्रैफिक हैं। का जितना निजाम हमारे खराब लिए इज्जत है की इन लोगों की जगह पे वजह है, से, तमाम ठीक लोग है? इज्जत की जगह पे है। इज्जत से ही बात कर रहे हैं हम। सिटी में, लाहौर सिटी में या कराची सिटी में कहीं पे भी आप चले जाएं, मैक्सिमम जो एक्सीडेंट का सबब है ना ये चिंगसी वाले हैं। जी जी की कह रहे हो ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ क्यों ब्लॉक होने चाहिए ਇਹ 3000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਲਾਨ ਹੈ ਤੇ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਜਿਸ ਕਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਉਹ 3000 ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਯਾਰ ਗਲਤ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਗਲਤ ਇਹਦੇ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸ਼ਾਈ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭਾਈ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਗੱਲ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ। ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਗਲਤ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਰ ਆ ਕੇ ਸਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਟਰੋ ਵੀ ਖਲੋਂਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਯਾਰ- ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਆ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਐਨੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਪਾਣ ਇਹ ਦਾਰੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਫਿਰ 50 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਰੋਡ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਆਨ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਣ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਣੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗਾੜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜਾ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇਹ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੋਈ ਦਾਰੇ ਦੇਵਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਰ ਰਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਤੀਜੀ ਪਾਣ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਲੈਨ ਲਾਈਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਕ ਲੈਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪਾਣ ਚੌਥੀ ਲੈਨ ਦੇ ਇੱਕ ਲੈਨ ਦਾ ਦਾਰਾ ਦੇਵਣਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਝਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੈਨ ਦਾ ਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਨ ਸਮਝਣਗੇ? ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਚਲਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਐ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ 3000 ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜੇ 10000 ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਉਹ ਮਿਲਣੀ 10000 ਦਾ ਵੀ ਹੋਏ ਦਿਨ ਉਹ ਤਾਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਪੱਲਿਓ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਟਰੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਟਰੱਕ ਚੱਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਉਹ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਪਸ ਆਓ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਦੇ ਸਕਣਾ ਚਲਾਨ ਭਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਗਾ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਦੇਗਾ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲੇ 200 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ ਅੱਜ 3000 ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਰਲੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਆਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਈ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ 10000 ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤਰਨਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜਾਂ ਤੇ ਆਏ ਕੋ ਮਾਫੀ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਦੱਸੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ 20000 ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ 20000 ਦਾ ਵੀ ਕਹੋ ਪਾਇੰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪਾਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਦਨਾਨ ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ? ਠੋਕਰ ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਠੋਕਰ ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਰਡਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ 20000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਵਣ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੈਨੂੰ ਓਏ ਆ ਜਿੰਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੋਵੇ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਜਿੰਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਮਾਂਡ ਪਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਦੀ ਓਏ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ 3000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਤੈਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦਿੰਦਾ 3000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਜਾਇਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ
फिर इस गल नूं मन फिर किन्ने ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਵੇ 1000 2000 ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਚੜ 2000 ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਣਾ ਉਧਰ बाकी बहरहाल लड़ाई कंटिन्यू है भाई लोगों की, लेकिन ये अदनान भाई कहते हैं कि हमें जितने का मर्जी चलान कर दें, ठोकर न्याज भाई के आप इशारे पर आएँ और खुल के यहाँ पर चलान करें। बाकी बहरहाल यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अवामी रिक्शा यूनियन के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं और मुद्दा वही कि जो सारी की सारी यूनियन है वो रोड पर मौजूद है और हमने अभी आपको दिखाया कि रोड के दरमियान में भी मौजूद है, चालान से भी तंग हैं, मुख्तलिफ मसाइल हैं, लेकिन यूनियन उनके लिए क्या कर रही है, तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ अवामी रिक्शा यूनियन के चेयरमैन जनाब मजीद गौरी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गौरी साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा गौरी साहब, पहले तो ये बताइएगा कि आप लोगों के चालान के इशू भी चल रहे थे, क्या उसमें आप लोगों को कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? देखें जी, चलान के इशू में हमें क्या फ़ायदा होना है। पासिंग का इन्होंने टाइम जो है वो कम कर दिया हुआ है और जो पासिंग के नाम पर चलान करते हैं पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी LTC जो है वो एक अलग है, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस के जो जुर्माने पंजाब हुकूमत ने बनाए हैं वो ट्रैफिक कवानीन के हवाले से वो भी बहुत ज़्यादा है। सही नहीं है वैसे? नहीं, मेरे ये बताएं 2000 चलान, 2000 का चलान, 2500 का चलान, 3000 का चलान होता क्यों है, आपको अंदाज़ा है? हाँ जी, ये चालान होता क्यों, आपको अंदाज़ा है? ये देखे मेरी बात सुने, ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए होता है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए होता है और मेरे ऊपर लगते हैं, मेरी वेलफेयर पे लगते हैं, रक्षा ड्राइवरों की वेलफेयर पे लगते हैं। अच्छा, या रक्षा ड्राइवरों को मेरी बताएं, या हुकूमत रक्षा ड्राइवरों को मोटिवेट करती है, इनकी वर्कशॉप्स करती है, इनको को आगाही मुहिम में इनका हिस्सा डलवाती है, या इनको लाइसेंस देने से पहले इनको कोई ट्रेनिंग देती है, उसके ऊपर ये चालानों के मद में जो पैसे हैं वो खर्च होते हैं, तो वो बताएं। अगर ये हमारे ऊपर नहीं लगते, देखें हमारी वेलफेयर पे नहीं लगते, मेरे बच्चों के दे दें सारे पैसे लाके चलान, तो रियासत की जिम्मेदारी है, आपको लाके दे दें। और हमें क्यों लाके दे दे भाईजान, रियासत की जिम्मेदारी है हमारी वेलफेयर चलान होते क्यों हैं? हमें आप बता दें क्यों होते हैं। अभी मैं इस वक्त ठोकर न्याज बेग के इशारे के ऊपर मौजूद था जी, ठीक है, और वहाँ पर देखा कि सारी की सारी ट्रैफिक ब्लॉक है। और ट्रैफिक ब्लॉक क्यों थी आपको पता है? हाँ, मेरी बात सुनो, क्यों थी? मैं बताता हूँ क्यों। रोड के बिल्कुल दरमियान में 4 लेन तक रिक्शे वाले गए हुए हैं, हमने वहाँ पे बात की, पूरे प्रोग्राम के अंदर देख लें। आप ये भी तो रोके, कोई एजुकेट भी करें अपने लोगों को। एजुकेट मैंने करना ना, रियासत ने नहीं करना, अदारों ने नहीं करना। रियासत आगे मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुने, मुझे ये बता दें कि किस जगह पे ये चीज़ डिसाइड है कि ये रक्षा पॉइंट है। अच्छा, अगर रक्षा पॉइंट मेंशन है कि 1 लाइन में 2 लाइन में ये रक्षे खड़े होंगे और उसके बाद ये कॉन्स लगी हुई हैं, इससे आपने बाहर नहीं निकलना, जो उससे बाहर निकलेगा उसका रक्षा आप चलान ना करें, वो बंद कर दें। मेरी बात सुने, बाई लॉज देखो, जो लॉ बन जाएगा, जो कानून की वायलेशन करेगा, हम उसके हमायती तो नहीं है। अच्छा, मगर ये बताएं तो पॉइंट आप देख के ठोकर पे आए हैं, 4 लाइन है, और भाई मुझे 4 लाइन बताया ना, मैं तो 2 लाइन में भी खड़ा होने के लिए तैयार हूँ, मेंशन करके दे के इससे बाहर आपने नहीं निकला। आपकी ये वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है, और पूरे आप ठोकर की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ शहर लाहौर के अंदर रक्षा ड्राइवरों के पास पॉइंट नहीं है। नहीं, LTC हो, ये पीरा फोर्स हो, ये पीरा फोर्स आपने बना दी है, ये हमारे सर पे सवार कर दिया आपने। ये तो महंगाई रोकने के लिए थी, निजायत तजावजात के खात्मे के लिए। मैं ये तमाम चीज़ों पर बात करता हूँ, लेकिन पहले आप ये बताएं, ये शामिल है ना बीच में। मैं इसके ऊपर भी बात करता हूँ। अभी आपने कहा कि एजुकेट हमने करना है, तो यूनियन का फायदा क्या अगर आप लोगों ने एजुकेट ही नहीं करना तो? हम मातम करना शुरू कर दें, और हम तो यूनियन क्या करती है? देखें, मजीद गौरी ने सबसे ज्यादा ये अवामी रक्षा यूनियन जो रोल प्ले किया ना, वो रक्षा ड्राइवरों को ट्रैफिक पुलिस के नजदीक लाने के लिए किया है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी चालान बचाने के लिए, चालान बचाने के लिए किया। ये आपस में मिलकर चलेंगे तो सिस्टम चलेगा। जरूरी नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस डंडे के जोर पर या ट्रांसपोर्ट कंपनी डंडे के जोर पर चलाएगी या पीरा फोर्स डंडे के जोर पर चलाएगी। हम वक्ती तौर पर रुक तो जाएंगे, मगर हमारा माइंडसेट वही है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं CM साहबा से आपसे गुजारिश करता हूँ कि खुदारा आप जिस तरीके से इनिशिएटिव ले रही हैं दूसरी चीज़ों के ऊपर, आप 5th क्लास तक ट्रैफिक कवानीन के हवाले से एजुकेशन के अंदर जो एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है उस निसाब का हिस्सा बना दें, ट्रैफिक कवानीन बना दें, मुआशरत के हवाले से हमसायों के। आपके कितने ड्राइवर पढ़े लिखे हैं? हाँ जी, कितने ड्राइवर पढ़े लिखे हैं? अल्लाह के हुक्म से हम दुनियावी तौर पे तो सारा कुछ पढ़े हुए हैं। मेरी बात सुन, अगर स्कूल गए ही नहीं तो वहाँ पर पढ़ा भी दें। मेरी बात सुनने, मैं आने वाली नस्ल की बात कर रहा हूँ, नस्ल को पढ़ाते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन आप चिंची अगर ड्राइवर नहीं पढ़ा तो मेरी जिम्मेदारी है।
रियासत ने दिया कुछ नहीं है इन गरीबों को। सवाल मुझे लग रहा है कि आप गुस्सा कर रहे हैं। नहीं, गुस्सा नहीं कर रहा, मेरी बात देते आप में देते कुछ नहीं है, हमारे ऊपर जुम्मा। हमारे क्या बच्चे पढ़े होने चाहिए? मैं आपको हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं होने चाहिए? बिल्कुल, आपके बच्चे हमसे भी ज्यादा पढ़े लिखे होने चाहिए, लेकिन और मसला है ये अल्हम्दुलिल्लाह, रिक्शा ड्राइवर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, हमने ये एजुकेट हमने किया है। बिल्कुल आपने किया, बहुत बहुत अच्छा आप किसी दिन प्रोग्राम करें, हमारे रिक्शा ड्राइवरों की बच्चियां डॉक्टर बन रही हैं, माशाल्लाह। तो ये मजाक की बात नहीं है। एआई के कोर्सेज कर रही हैं, माशाल्लाह, बहुत कंप्यूटर के कोर्सेज कर रही हैं, मगर अपनी मदद आपके तहत कर रही है। बताया हमारे लिए कौन सा अदारा है रिक्शा ड्राइवर के बच्चे के लिए, बिल्कुल 1 मिनट बात करें, या मजदूर के बच्चे के लिए मेरी तो बात सुन ले, कारपेंटर के लिए बता दें। गौरी साहब मेरी बात सुन लें, अभी मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप जानबूझ के ऐसा सवाल करते हैं ना, आप बीपीआई कर देते हैं पहले, फिर आप कहते हैं नहीं आपके बच्चे को ऐसा होना चाहिए। मुझे हमारे बच्चा भूख और अफलास से हम लोग मर रहे हैं, आप हमें एजुकेशन दे नहीं रहे, अब हमारे बच्चों को एजुकेशन मिलती नहीं, खरीदनी पड़ती है। आप मुझे कह रहे हैं कि आप हमें भी खरीदनी पड़ती है गौरी साहब, हमें भी खरीदनी पड़ती है, सारों को खरीदनी पड़ती है। आपके वसाइल हैं, आपने ये माइक पकड़ा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको महीने बाद तनख्वाह मिलनी है, आपका मेहनत करते हैं, आपका इंजन सीज नहीं होना, आपका इंजन सीज नहीं होना। देखिए आप हमें 4 बातें भी सुना रहे हैं, हमें सुननी भी पड़ती है। ओ भाईजान आप सुनेंगे ना, आप क्यों देखिए, आप भी तो हमारे साथ कर ही रहे ना। देखो गुजारिश हम तो मोहब्बत कर रहे हैं आपके साथ, ये मोहब्बत है। आप कहते हैं कि रिक्शा ड्राइवर पढ़ा लिखा नहीं है तो पढ़ाए किसको? और नहीं मुझे पढ़ाना, आपने वो वाली बात, मैं दोबारा मेरी बात सुन ले, सवाल से सुन ले, सवाल पहले आप सवाल सुने, अब मेरा पहले आप सवाल सुने, पहले आप मेरा सवाल सुने। सवाल मेरा ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि जो एजुकेशन है उनकी किताबों के अंदर शामिल कर दिया जाए कवानीन को, लेकिन रिक्शा ड्राइवर तो यकीनन पढ़ना चाहिए था, लेकिन वो उस तरह से पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको तालीम कैसे मिलेगी? वो तो वहां से नहीं सीखेंगे, वो तो अपने यूनियन से सीखेंगे, आप क्यों नहीं सिखाते? मैं बताता हूं, मेरी बात सुने, यूनियन का हुक्म, यह हमें को पैसे नहीं मिलते हुकूमत की तरफ से। क्यों कर? बात सुन लेना, हम अपनी मदद आपके तहत इनको एजुकेट करते हैं, और ये पढ़े नहीं ना तो कड़े जरूर हुए हैं। क्या बात है जी, ये पढ़े नहीं है तो कड़े जरूर हुए हैं, ठीक है। गुजारिश ये है कि मेरा सीएम साहबा से आपसे है जी कि आप रिक्शा ड्राइवर को जब लाइसेंस इशू करते हैं उससे पहले इनको एजुकेट करें ट्रैफिक कवानीन के हवाले से। ये अच्छी बात है। अवामी रिक्शा यूनियन आपके साथ, ट्रैफिक पुलिस के साथ, आपके अदारों के साथ मिलकर इनको अपनी मदद आपके तहत एजुकेट करने के लिए तैयार है। आप हमें बुलाएं, आपके अदारे बुलाएं, हम हर वक्त तैयार हैं। चंद दिन पहले सीटीओ साहब ने कहा था कि ये एक अच्छी बात आई है, 4 दिन पहले ही आई है, वो 4 साल पहले नहीं आई। उन्होंने कहा ये आप आए रिक्शा ड्राइवरों को यूनिफॉर्म दें। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी, ये अच्छी बात है। और फिर हमारे रिक्शा ड्राइवरों के बच्चों ने तजावीज़ दी हैं, वो भी मैं आपको अनाउंस नहीं करना चाहता, वो कल परसों की मीटिंग में हम आपको बताएंगे, और बहुत अच्छी हैं वो तजावीज़। अच्छा, तो एक आधा बता दें, है नहीं, एक आधी बता दें, कोई बड़ी आप ये बहुत अच्छी बात। रिक्शा ड्राइवर को मैंने देखें, रिक्शा एक ऐसी सवारी है, टैक्सी एक ऐसी सवारी है कि दुनिया से जो भी आएगा ना, एयरपोर्ट पे उतरे, बस स्टैंड पे उतरे, रेलवे स्टेशन पे आए, उसका सबसे पहला तारुफ रिक्शा और टैक्सी वाले से होता है। तो हम अगर सीटीओ साहब ने सोचा है कि इनकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। आप यूनिफॉर्म अनाउंस कर रहे हैं, ये लोग यूनिफॉर्म में होंगे कुछ अरसे बाद? कुछ अरसे बाद नहीं, दिनों बाद। अच्छा, कुछ दिनों बाद, वही अरसा हो गया जी, कुछ दिनों के बाद अरसा होता है, अरसा दराज, अरसा दराज, दराज अल्लाह करे आपकी। अरसा दराज नहीं होगा, अरसा थोड़ा होगा। आप अपने चैनल पे आपके सीटीओ साहब से भी जाके मिले, बिल्कुल ऐसे, उनसे कल ही मिले, उनको बोले आपने बड़ा ऐलान कर दिया है। मैंने नहीं किया, ये सीटीओ साहब ने कहा कि मैं मरियम नवाज साहबा से भी बात करेंगे, हम सारा कुछ, हम तो तैयार है, पहनाए यूनिफॉर्म, लाए डिजाइन, हम तो खुद बनानी है ना, मगर जो 2-3 चीजें हैं ना वो ऐसे नहीं बताने लगे। उसके साथ क्या होगा, रिक्शा ड्राइवर भी सिक्योर होगा, रिक्शा भी सिक्योर होगा, और जो पैसेंजर होगा सबसे ज्यादा वो सिक्योर होगा। और इतनी अच्छी इंशाल्लाह हम ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर, सीटीओ साहब के साथ मिलकर, हम अवाम को इतनी अच्छी सफरी सहूलत देंगे कि लोग कहेंगे कि इस रिक्शा के अलावा सफर नहीं करना। क्या बात है, बहुत बेहतरीन है। लेकिन सबसे अच्छी मुझे बात लगी है गौरी साहब, वैसे तो हमेशा ही आपसे बात करके मजा आता है, लेकिन ये जो आपने बताया यूनिफॉर्म वाले, यकीन करें कि हमारा शायद जो मेयार है, जो कि हमारा स्टैंडर्ड है सफर का, इससे बहुत ज्यादा अप हो जाएगा। हमें पता लग जाएगा ये रिक्शा ड्राइवर है और ये नहीं है। यूनिफॉर्म के साथ जो 2-3 चीजें बिल्कुल आपकी मेंशन हो रही है ना, वो इससे भी ज्यादा अच्छी है। इससे भी ज्यादा सफरी सहूलियत हमारी ज्यादा बेहतर हो सकती है। तो स्कूल की बेटी, कॉलेज की बेटी, खातून अपने घर रिक्शे में बैठने से पहले घर के साथ टच हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, ये तमाम सफरी सहूलियात बेहतर होने वाली है। मजीद गौरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। बाकी प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसके साथ अपने मेजबान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाजत।